Hello students, in previous class I taught you about the land distribution in Palampur. Today we will study who will provide the labor, because after land labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. As you know, in Palampur, most of the farmers are the small farmers, but some of the large farmers, and they have the more large fields and they hire farm laborers to work on their fields. And you will be discuss the some points, identify the work being done on the field in the pictures 1.6 and arrange them in a paper sequence. And picture number 1.6, and you can see it. And farm laborers come either from landless families or families cultivating a small plot of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. Wages can be in cash or in kind, that is crop. Sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another. Like sowing and harvesting, there is also wide variation in the duration of employment. Because one story has given in your book, Dala and Ramkali are among the poorest native of the place, and both are discussing with their work. A farm laborer might be employed on a daily basis on or for one particular farm activity like harvesting, or for the whole year. Dala is a landless farm laborer who works on daily basis in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for a farm laborer set by the government is 300 rupees per day in March 2017, but Dala gets only rupees 160. There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. Because we are discussing who will provide the labor, that means लेबर कौन प्रोवाइड करेगा ना. तो लैंड के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अगला आवश्यक जो फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, वो होता है लेबर. अगर लैंड है तो लैंड में लेबर की भी नीड होगी, और जो फार्मिंग होती है उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम की भी आवश्यकता होती है. जो छोटे किसान होते हैं और उनके जो परिवार होते हैं वो अपने खेतों पर स्वयं ही खेती करते हैं. यद्यपि वे जो लेबर जिनके लिए आवश्यक होती है, जिनके अपने पास खेती होती है, और बड़े जो किसान होते हैं, मध्यम होते हैं या लार्ज जो फार्मर्स होते हैं, वो फार्म लेबरर्स को क्या करते हैं, हायर करते हैं और अपने खेतों पे कार्य करने के लिए, और उसके बदले में उनको जो है कुछ पैसा भी दिया जाता है. फार्म जो लेबरर्स होते हैं ज़्यादातर वो लैंडलेस फैमिली से या ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास भूमि का छोटा टुकड़ा होता है. और फार्मर्स के अतिरिक्त जो फार्म लेबरर्स होते हैं डू नॉट हैव अ राइट ओवर टू द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. जैसे जो फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, उनके अतिरिक्त जो छोटे फार्मर्स हैं या जो लैंडलेस लोग हैं,
वो बड़े फार्मिंग सिस्टम वाले जो किसान होते हैं उनके यहाँ वो एज अ लेबरर वर्क करते हैं और वो पेड वेजेस होते हैं और वो बड़े किसानों के लिए कार्य करते हैं और जो वेजेस उनको दिया जाता है वो कैश में दिया जाता है या क्रॉप्स के रूप में दिया जाता है। क्रॉप्स के रूप में कैसे देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताऊं तो जैसे गांव में जो फार्म लेबरर्स होते हैं उन्हें काम के बदले में अनाज भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे खेती को जब पक जाती है, जैसे गेहूं की फसल है, जब वो पक जाती है तो उसकी जब कटाई का समय होता है तो बहुत सारे ऐसे फार्म लेबरर्स होते हैं तो उनको कटाई के बदले में जब वो खेत काटते हैं तो उसके बदले में उनको अनाज दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है उन्हें कई तरीके से वेजेस जो है प्रदान किए जाते हैं और जो वेजेस होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं और क्रॉप से क्रॉप में होते हैं। जैसे राइस का होता है वो अलग होता है, वीट का अलग होता है ना, और पल्सेस का अलग होता है। कई क्षेत्रों में जैसे दाल की भी खेती की जाती है। सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक है ना, सबका अलग अलग होता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक वेरिएशन होता है एम्प्लॉयमेंट की अवधि में। और एक जो फार्म लेबरर होता है वो एक ऐसा एम्प्लॉयड होता है जो डेली बेसिस पर रखा जाता है और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हार्वेस्टिंग के समय होती हैं और ये पूरे वर्ष में एक बार ही होता है। जैसे कि गेहूं की फसल होती है तो वो रबी की फसल कही जाती है और रबी की फसल जब कटती है तो उस समय उनको कटाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। डाला जो है वो एक भूमिहीन फार्म लेबरर है ना। फार्म लेबरर होता है जैसे हम खेतिहर मजदूर कहते हैं और वो डेली बेसिस पर जो है पालमपुर में काम करता है। इसका अर्थ ये है कि वो रेगुलरली काम की तलाश में रहता है और उसको जो मिनिमम वेजेस दिया जाता है वो करीब 160 रुपये पर डे मिलता है, जबकि सरकार ने जो फिक्स किया है वो 300 रुपये पर डे है। ये मार्च 2017 का आंकड़ा है ना। और उसके लिए काफ़ी जो है बड़ा एक कंपटीशन होता है फार्म लेबरर्स के बीच में पालमपुर में, क्योंकि वो सभी जो है कम से कम वेतन पर कार्य करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो डाला जो है वो अपनी सिचुएशंस के बारे में रामकली से शिकायत करता है ना, और वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हम पिक्चर 1.7 डिस्कस करेंगे। हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, जो कि एक अन्य खेतिहर मजदूर है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द प्लेस, और ये दोनों ही गांव में सबसे गरीब व्यक्ति हैं। यहाँ पर डाला और रामकली के बारे में दिया गया है। तो डाला और रामकली एक दूसरे से चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो डाला क्या कहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फार वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। तो डाला कहता है ये काफ़ी मुश्किल है आज के समय में, आज के दिनों में काम ढूंढना एक तरीके से, क्योंकि जो बड़े किसान हैं वो बहुत ही सीमित दिनों के लिए ही हमें काम प्रदान करते हैं। बी है। उसके बाद रामकली कहती है घनश्याम द लार्ज फार्मर, वो कहती है घनश्याम जो एक बड़ा किसान है जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। घनश्याम एक किसान है जिसने एक हार्वेस्टर खरीद लिया है और उससे अब क्या होगा कि गांव के अंदर जब फसल की कटाई का समय होगा तो मज़दूरों को कम काम मिलेगा पिछले वर्ष की अपेक्षा, क्योंकि पिछले वर्ष तो हमें करीब 5 महीने के लिए काम करने के लिए मिला था। जब अब हार्वेस्टर आ गया है तो हार्वेस्टर से क्या हुआ है, कटाई का काम आसान हो गया है और आसानी से हो सकता है। तो उससे जो डेली बेसिस के जो लेबरर हैं उनके लिए काम की कमी हो जाएगी। We have tractors for plowing, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicide. तो डाला कहता है कि अब किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं, है ना, काटने के लिए थ्रेशर हैं, थ्रेशिंग करने के लिए, और बीड्स हटाने के लिए उनके पास वीडिसाइड्स स्प्रे जो होता है, जैसे घास वगैरह हो जाती है फसल के अंदर तो उसको उखाड़ने के लिए क्या करते हैं वो वीडिसाइड, जैसे अलग अलग प्रकार की वीडिसाइड्स को हटाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है ना केमिकल्स आते हैं मार्केट में,
तो उनका वो स्प्रे कर देते हैं, तो इससे हमारा काम क्या हो गया है, कम हो गया है। आई ओव द लोकल मनी लेंडर 2000 रुपीज़। I had taken 1000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. डाला ये कहता है कि मैंने एक लोकल मनी लेंडर से, है ना, एक स्थानीय साहूकार से 2000 रुपये उधार लिया। मैंने करीब 1000 रुपये पिछली गर्मियों में भी और लिया, ठीक है, और जबकि उस समय खेतों में कोई भी काम नहीं था, तो अब मैं उसको कैसे दोबारा से उसको चुकाऊंगा, है ना। इस समय तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस समय तो 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रेक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। इस वर्ष में रानी रामकली कहती है कि इस वर्ष में जो है ब्रेक यानी ईंट बनाने की जो यूनिट है रायगंज में, वहाँ पर काम देख रही हूँ, है ना। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर। मेरी भी स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेबिट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन। उसने कहा कि जो साहूकार है वो अब मुझे उधार देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसने अब दोबारा लोन देने से मुझे इनकार कर दिया है, क्योंकि उसके पास भी पहले से लोन था। क्योंकि गांव के अंदर जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं वो मोटे ब्याज पे उनको पैसा देते हैं और वो चुकाते हैं। आज भी स्थिति अगर देखें तो काफ़ी परिवर्तन हमारे समाज में हुआ है, लेकिन अभी भी जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। खेतीहर मजदूरों की तो बात अलग है, यहाँ तक कि किसानों की स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ है। खास करके जो छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। जो बड़े किसान हैं वो खेतीहर मजदूरों को आज भी हायर करने में उतना वेतन नहीं दे पाते हैं, और वो जो वेजेस उनको मिलता है तो वो सफिशिएंट नहीं होता है, जिससे कि उनके घर का भोजन जो है पूरा हो सके, उनकी डेली नीड्स जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो आज भी है। अब हमें एक पॉइंट इसमें दिया गया है, वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। अब प्रश्न ये है कि डाला और रामकली जैसे जो खेतीहर मजदूर हैं वो गरीब क्यों हैं। अब इसका आंसर ढूंढो आप, उसका रीज़न क्या है ना। क्योंकि उनको पूरे वर्ष में कितने दिन रोज़गार मिलता है, ज़्यादा दिन तक तो वो बेरोज़गार ही होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है, अगर उनको डेली बेसिस पर भी डेली वर्क अगर मिले, जैसे हम पिछले सेक्शंस में इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किए कि सबसे ज़्यादा होता है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं होगी तो तब तक जो है प्रॉपर एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं होता है। जब सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं होगा तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होगी, और जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो हम जो 2 स्क्वायर मील की बात करते हैं, यानी 2 वक्त का जो भोजन होता है वो भी जुटाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गोसाईपुर एंड माजोली आर 2 विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। ये बिहार की एक बात है कि नॉर्थ बिहार में 2 गांव हैं जिनका नाम है गोसाईपुर और माजोली। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड इन द 2 विलेजेस। इन दोनों गाँव में करीब 850 जो है गृहस्थी रहते हैं। एंड देर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। सच माइग्रेशन इन कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। वाई डू पीपल माइग्रेट। अब एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि लोग जो हैं वो माइग्रेट क्यों होते हैं। क्योंकि वो रोज़गार की तलाश में होते हैं। जिन क्षेत्रों में वो निवास करते हैं वहाँ पर क्या है, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, जिसके कारण उन्हें रोज़गार ढूंढने के लिए दूसरे स्थानों पर माइग्रेट होना पड़ता है। माइग्रेट होने के लिए उन्होंने जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, मुंबई है, सूरत है, हैदराबाद है, नागपुर है, ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं या जो प्रॉस्पीरियस स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हरियाणा का बात करते हैं या हम वेस्टर्न यूपी का करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बिहार से बिलोंग करते हैं। क्योंकि वो अधिकतर जो है लो वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको इन क्षेत्रों में भी इतना वेतन मिल जाता है जितना उनके क्षेत्रों में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो हमारे इन क्षेत्रों के आसपास जो वेतन मिलता है उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर माइग्रेट होते हैं। वाई डू पीपल माइग्रेट, कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर
imagination the work that the migrants of Gosaipur and Majoli might do at the place of destination, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग माइग्रेट होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं, तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। क्या हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो गोसाई और माजौली उत्तर बिहार के दो ऐसे गांव हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट्स का प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा, वहाँ प्रॉपर उनको रोज़गार मुहैया नहीं कराया जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। यही सबसे बड़ा कारण है। अगर हम लोकल में अच्छे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्थानीय क्षेत्रों में वहाँ किस प्रकार का रोज़गार क्रिएट किया जा सकता है। अगर उन पर फोकस किया जाए तो हम माइग्रेशन को रोक सकते हैं। माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा जो आपने अभी हाल ही के दिनों में जब कोरोना क्राइसिस हुआ, तो कोरोना की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट जो शहरों में थे, जो दूर क्षेत्रों से आकर के शहरों में नौकरियां कर रहे थे, तो उन्हें देखा आपने कैसे वो पैदल यात्रा करते हुए अपने घरों को वापस लौटे। तो ये एक माइग्रेशन था, क्योंकि जो माइग्रेट होकर के लोग शहरों में आए, बड़े बड़े शहरों में, और वहाँ भी जब यही स्थिति उत्पन्न हुई तो फिर उन्हें वापस अपने घर के लिए जाना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी सिक्योरिटी मिले, और डेली उनको एम्प्लॉयमेंट अगर मिल जाए तो लोकल एरियाज़ में भी हम अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ की हम इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, है ना। जो पूंजी होती है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी आवश्यक होती है फार्मिंग के लिए। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, so that the farmer now needs more money than before। ज़्यादातर किसानों को क्या है, पहले पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि विदाउट कैपिटल यू कांट डू द फार्मिंग, है ना। अब खेत में हमको कोई फसल बोना है तो उसको पहले हमें प्लोइंग करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर में अगर है आपके पास तो उसके लिए डीजल भी चाहिए, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। और ये सब कुछ नहीं है तो आपको रेंट पे कराना पड़ेगा, तो भी उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें उसके लिए कैपिटल की नीड होगी, फिर हमें बीज भी खरीदना है, हमें खाद भी खरीदना है, ठीक है। उसके बाद जब फसल पक जाएगी तो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं फार्मिंग से रिलेटेड है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अधिकतर जो छोटे किसान होते हैं वो पैसा यानी कैपिटल अरेंज करने के लिए, है ना, पैसा उधार लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े फार्मर्स से, साहूकारों से गांव में, या व्यापारियों से अलग अलग तरीके से कर्जा लेते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें कल्टीवेशन के लिए अलग अलग प्रकार के इनपुट्स की नीड होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। इस प्रकार के जो लोन लिए जाते हैं उन पर जो ब्याज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। और जब वो दोबारा उस लोन को चुकाते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल भी होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उस पर लिया जाता है। यहाँ एक कहानी है सविता की। सविता जो एक वो छोटी किसान है, सी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 hectare ऑफ लैंड। Besides seed, fertilizer and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000, and she does not have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh. And a large farmer, है ना, a large farmer, Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field, and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees
to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. जैसा हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि खेती करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो जो छोटे किसान होते हैं उनको जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो मनी लेंडर से या जो बड़े किसान होते हैं गांव में उनसे उधार लेते हैं। तो ऐसे ही सविता एक छोटी किसान है और उसने एक योजना बनाई कि गेहूं की पैदावार करने के लिए, गेहूं की खेती करने के लिए उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें उसे खाद, बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सभी के लिए उसको पैसे की नीड है, तो और पानी भी देना है और फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर भी करना है, उन सब के लिए उसे को पैसे की आवश्यकता थी। तो उसने अनुमान जो लगाया कि वर्किंग कैपिटल जो है वो करीब 3000 रुपये है ना, तो 3000 रुपये उसने वर्किंग कैपिटल जो था वो उधार लिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने ये निश्चय किया कि वो तेजपाल सिंह से उधार लेगी। तो एक तेजपाल सिंह क्या है, एक बड़े किसान हैं। तेजपाल सिंह सहमत हो गए सविता को उधार देने के लिए, लेकिन उन्होंने 4 महीने के लिए जो पैसा दिया वो करीब 24% की ब्याज पर दिया। ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट था। तो सविता ने ये वायदा भी किया कि वो अपने खेतों के अंदर काम करेगी और उसके साथ साथ जो खेती और मजदूर के रूप में हार्वेस्ट सीज़न में भी वो कार्य करके 100 रुपये प्रतिदिन जो है वो जुटा सकती है। जैसे ही ये कहा जा सकता है कि ये जो वेजेस हैं 100 रुपये पर डे वो काफ़ी कम होता है। तो सविता जानती है कि उसे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने खेत की भी हार्वेस्टिंग कर ले और वो कंप्लीट करने के बाद वो कुछ फार्म लेबरर के रूप में भी काम करे। तो वो जो काम करती है तेजपाल सिंह के फार्म लेबरर के रूप में, तो हार्वेस्ट टाइम पर वो बहुत ज़्यादा बिजी समय होता है और उसकी मदर है और एज अ मदर है ना, क्योंकि वो जैसे माँ भी है और उसके 3 बच्चे भी हैं, तो उसकी घर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो सविता वो उस पर सहमत हो जाती है कि उसके सामने बहुत सारी टफ़ कंडीशंस होती हैं और वो जानती है कि उसने जो लोन लिया है ना, वो उसको चुकाना काफ़ी कठिन भी है, क्योंकि वो एक छोटी किसान है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, they are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answers in the next section. तो इसका आंसर हम अगले सेक्शन में प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब है जो छोटे जो किसान होते हैं, जो फार्म लेबरर्स होते हैं, फार्म लेबर्स के रूप में उनको कार्य भी करना पड़ता है, तो वो जब लोन लेते हैं हाईएस्ट इंटरेस्ट पर तो उनको चुकाना काफ़ी मुश्किल होता है, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो क्या इसमें आगे का जो सेक्शन है, जैसे हमने कहा कि नेक्स्ट सेक्शन में हम इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि छोटे किसान जो है वो किस प्रकार से मेहनत करते हैं और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं।